students, welcome to Techno Herald online initiative by Techno Herald Institution. In this lecture we are going to study more problems based on maxima and minima. We have studied all the concepts related to maxima and minima. In this lecture we will study some more problems based on local maxima, local minima, and after that we will move to the portion absolute maximum, absolute minimum points. Okay, before going there we will solve some more problems based on some good problems actually based on maxima and minima. All of them are mostly previous gate year questions. All of them are. You can feel by solving these problems that mathematics in GATE means solving the problem of mathematics in GATE is much easier than any other of your technical paper. Okay, look at these problems. These will take this just means 1 minute problems. These are okay, not more than 1 minute. Okay, so by solving these problems, if you are good in solving these kind of problems, means the Taylor series problem, the maxima minima problem, basically mathematics problem, okay, you can save a lot of time for your technical papers. Okay, for the question of your technical papers. तो अगर मैथमेटिक्स, एक तो क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आप मैथमेटिक्स काफ़ी क्रश करके पढ़ सकते हो गेट के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है. प्रैक्टिस के लिए लेक्चर्स देखो और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो. आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखो मैक्सिमा मिनिमा भी अभी कर रहे हैं हम लोग, आपको पहले से आती होंगी ये चीज़ें, ठीक है, कुछ नई बातें नहीं है ये. तो चलो पहला प्रॉब्लम देखो. द फंक्शन f of x is equal to 2x minus x square plus 3. You have to find that at which points the function is having a maxima and a minima. They are not asking about maximum value or minimum value, they are just asking about the points where the function will have a maxima or will have a minima. So basically you have to find the stationary point and you have to tell that at which stationary point the function is maxima and at which stationary point the function is minima. Okay, so let us solve this problem. Solution for problem number 1. f of x given here is, देखो पहला क्वेश्चन तो इतना सिंपल है कि आपने कर लिया होगा अभी तक. सबसे पहले क्या करोगे, f डैश x, काफ़ी स्टेप वाइज हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें, मैं आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट. ओके, सो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 2x. आप सिंपली देख सकते हो कि आपका f डैश क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, तो स्टेशनरी पॉइंट इसमें कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे. तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो जिन ऑप्शंस में 2 स्टेशनरी पॉइंट्स उन्होंने दिया है, मींस एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा दिया है, तो ये ऑप्शंस तो आपके पहले ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा. ठीक है, तो आप पहले 2 ऑप्शंस तो सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हो. ठीक है, पहले 2 ऑप्शंस तो पक्का गलत है. अभी देखो एक पॉइंट बचा हमारे पास, कौन सा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 सेम ही पॉइंट है, बस आपको पता ये करना है कि वहाँ पे हमारा फंक्शन मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा. कैसे पता करोगे, तो पहले स्टेशनरी पॉइंट निकाल लो. f डैश x इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव यू अ x इज इक्वल टू 1. दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट. अब निकालो सेकेंड डेरिवेटिव, f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना होगा, -2. f डबल डैश x इज इक्वल टू -2. सो -2 आप निकालो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, 1. क्या होगा ये, फिर भी ये तो -2 होगा, क्योंकि ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करे, x से इंडिपेंडेंट है. सो दिस implies that f डबल डैश x at x is equal to 1 is less than 0, and less than 0 signifies a point of what, maximum. So this implies that your point is a maximum point. This is the point of maxima. So which option is correct here, f of x is having a maxima at x is equal to 1. Option number C is correct. अब आप यकीन नहीं करोगे, ये गेट 2 मार्क क्वेश्चन है. कितना वक्त लगा इसको सॉल्व करने में, इट इज जस्ट सिंपली अ 3 लाइन प्रॉब्लम और 2 मार्क, इट इज फॉर 2 मार्क. सो दिस सिंपल इट इज. ओके, मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर करना इतना सिंपल है.
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, दिस इज अ गेट 1 मार्क क्वेश्चन। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। इसको तो आपको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देखो, दे हैव गिवन e to the power y is equal to x to the power 1 by x। सबसे पहले क्या करोगे, dy by dx निकालोगे। dy by dx निकालने के लिए क्या करो, y के टर्म्स को एक तरफ कर दो, x के टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो उसके लिए क्या करोगे, दिस इज अ पावर फंक्शन, टेक अ log, ओके, log on both side। दिस इज अ पावर फंक्शन, taking log on both sides, क्या होगा, log e to the power y इज इक्वल टू, और फिर ln कर दो, एक ही बात है, ln e कर दो, बेस का झंझट नहीं होगा। ln e to the power y इज इक्वल टू ln x to the power 1 by x। You simply see that your y is equal to 1 by x ln x, 1 by x ln x। Now differentiate it, now find dy by dx। dy by dx is equal to d by dx of 1 by x ln x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, चेन रूल लगाओ, 1 by x इंटू 1 by x। 1 by x को कांस्टेंट करके मैंने क्या किया, ln x को डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट ln x को कांस्टेंट रख के 1 by x को डिफरेंशिएट करोगे, ये मिलेगा आपको -1 by x स्क्वायर। नेक्स्ट पुट dy by dx इज इक्वल टू 0 टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। दिस विल इम्प्लाई दैट 1 by x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर ln x इज इक्वल टू 0। सो अभी देखो x स्क्वायर उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। सो ln x विल बी इक्वल टू कितना, 1। ln x इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू e। एट x इज इक्वल टू e, ln e इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा, e होगा। अब आप चेक करो दैट एट x इज इक्वल टू e योर सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है। तो चलो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। लेट अस फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव नाउ। d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, dy dx ऑफ dy बाई dx। सो d बाई dx ऑफ dy बाई dx हमने निकाल रखा है, क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ln x, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ln x। देखो जगह यहाँ पे थोड़ा कम है तो मैं इसको इरेज करके ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। आपने ऊपर कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो पॉज करके। अब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ओके। डिफरेंशिएट करो इसको एक बार। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर -2, सो इट विल गिव यू -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड -2 by x cube into ln x and plus so -1 by x cube हो जाएगा ये अगेन, ठीक है। -1 by x स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे और ln x को 1 by x कर देगा उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करके। सो नाउ दिस इज योर वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज योर d2y by dx स्क्वायर, okay। Now check at x is equal to e, check that at x is equal to e, this is a positive or this is negative। So at x is equal to e, वन बाई एक्स स्क्वायर, हाँ ओके करेक्ट है। at x is equal to e, d2y by dx square, that is at x is equal to e
इज इक्वल टू क्या है ये 2 by x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब. सो दिस विल गिव यू माइनस 1 by x क्यूब एंड प्लस 2 by x क्यूब ln x. x की जगह पे e पुट करो तो ये क्या बन जाएगा ln e which will be equal to 1. So this will be 2 by x cube means 2 by e cube minus 1 by e cube. This is 1 by e cube. 1 by e cube is basically क्या positive. 1 by e cube is greater than 0 because e is a positive number. E is 2.71 almost. So e is a positive number. So at x is equal to e, your second derivative is greater than 0. So you see that d2y by dx square at x is equal to e is greater than 0 is equal to 1 by e cube which is greater than 0. This implies a point of minima. Point of minima greater than 0 पे क्या होता है point of minima होता है. So which option is correct? At x is equal to e, at x is equal to e, your function is having a point of minima. Okay. चलो तो ये हो गया. Let us move to the third question. Let me remove it. Let us move to the third question. Hello dear students, welcome to Techno Herald Online again. In this lecture we are going to solve some more problems based on maxima and minima. We will learn some new concepts also. So let us study these three basic problems, basic and good problems based on maxima and minima. So let us solve the first question. You can see in the first question they have given a function f of x is equal to 2x minus x square plus 3 and they are asking that at point x is equal to 1 and point x is equal to 5 the function is having a maxima or minima. So they are talking about the points only. Means what you have to find? You have to only find that at these points your function is having a maxima or a minima. You don't have to find the maximum value or minimum value, just you have to find the points where maxima and minima exist. Okay. So let us solve this problem. They have given f of x is equal to 2x minus x square plus 3. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं dy by dx. यहाँ पे dy y नहीं है तो क्या करोगे? सबसे पहले f dash x निकालो is equal to 2 minus 2x. तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होंगे? f dash x is equal to 0. This will give you what? 2 minus 2x is equal to 0. माने कि x is equal to 1 is the only stationary point here. इसके अलावा आप अपने फंक्शन का ऑर्डर देख के भी बता सकते हो कि कितने स्टेशनरी पॉइंट हो गए. स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हो? एक बार डेरिवेटिव निकालते हो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके निकालते हो. तो अगर सेकेंड ऑर्डर के फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1. कितने भी ऑर्डर के फंक्शन को जब एक बार डिफरेंशिएट करते हो उसका ऑर्डर क्या होता है? 1 से घट जाता है. तो नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? दैट नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द फंक्शन -1. ओके. सो तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि स्टेशनरी पॉइंट तो एक ही है, पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी में इन्होंने 2 पॉइंट्स के बारे में पूछा है, x is equal to 1 एंड x is equal to 5 के बारे में. सो दीज 2 पॉइंट्स आर सिंपली डिस्कार्डेड बिकॉज 2 तो स्टेशनरी पॉइंट्स है ही नहीं, एक ही स्टेशनरी पॉइंट है और वो क्या है हमारा? x is equal to 1. अब इन दोनों ऑप्शंस में x is equal to 1 इन्होंने दे रखा है. अब आपको पता ये करना है कि x is equal to 1 पे आपका पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है. कैसे पता करोगे? यू विल फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव. तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो. f डबल डैश ऑफ x क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएट करो, दिस विल गिव यू -2. सो -2 तो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना? -2. दिस इज लेस देन 0
or less than 0 implies that this is a point of maxima. So at x is equal to 1, f of x has a point of maximum. So your option number C is correct. Option number C is correct. Now let us move to question number 2. The question number 1 is a previous year GATE 2 mark question. So you can see that for 2 mark they are asking just 3 line questions. That's why I keep on telling that scoring marks in mathematics is much easier than scoring marks in any other technical paper. Okay, किसी भी टेक्निकल पेपर से ज़्यादा इजीली आप मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हो. क्यों देख रहे हो, 2 मार्क के लिए ये 3 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लिटरली कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ भी नहीं है. दे हैव गिवन e टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/x. पावर फंक्शन है ये. पावर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स. क्या होगा, ln e टू द पावर y इज इक्वल टू ln x टू द पावर 1/x. दिस विल गिव y इज इक्वल टू y ln e इज 1. लिख देती हूँ मैं, y ln e इज इक्वल टू 1/x ln x. ln e का वैल्यू 1 होता है. दिस गिव्स अ 1. सो y is equal to 1/x ln x. Now find dy by dx so that we can find the stationary points. तो dy by dx निकालो. dy by dx is equal to d by dx of 1/x ln x. अब डिफ्रेंशिएट करने में तो आप मास्टर हो पहले से ही, फटाफट डिफ्रेंशिएट करो इसको. क्या देगा ये, दिस विल गिव अ -1/x square ln x plus 1/x square. Now to find the stationary point, put dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. This implies that 1/x square minus 1/x square ln x is equal to 0. x square क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. You will find that ln x is equal to 1. ln x is equal to 1 मतलब क्या होता है, x is equal to e. ln x is equal to 1. Thus x is equal to e. It is having a stationary point at x is equal to e. Now you have to find that at x is equal to e. देखो 2 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो गए ना. स्टेशनरी पॉइंट आपने निकाल लिया तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में क्या कहा है इन्होंने, स्टेशनरी पॉइंट 1/e कहा है, लेकिन 1/e तो नहीं है. क्या आया है, x इज इक्वल टू e आया है. तो चलो अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू e पे फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा. तो कैसे पता करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के पता करोगे. तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx of dy by dx निकाल रखा है आपने, क्या है 1/x square minus 1/x square ln x. So 1/x square minus 1/x square ln x. इसको डिफ्रेंशिएट करो. कहाँ पे करना है हमें, स्टेशनरी पॉइंट पे at x is equal to e पे. तो x is equal to e मैं यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ. 1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2/x क्यूब, -2/x क्यूब. एंड नेक्स्ट अब इस पर चेन रूल लगाओ तो ये देगा आपको -1/x स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा 2/x क्यूब. सो दिस विल गिव यू अ +2/x क्यूब 1/x square x to the power -2/x cube. Okay, -2/x cube is correct. Then again it will give you +2/x cube ln x and -1/x cube. So -1/x cube.
फाइन -1/x³। अब इसको हमें कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल टू ई पे। x इज इक्वल टू ई जब पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ln e इज इक्वल टू 1, सो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू e विल गिव यू -2/e³ प्लस 2/e³ -1/e⁻3। ये दोनों हो गया कैंसिल, तो आपको क्या मिला, -1/e³। अब आप देख सकते हो -1/e³ इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सो योर d2y by dx square is negative. This implies that x is equal to e is a point of क्या, maximum. x is equal to e is a point of maximum, so your option number A is correct. ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम थोड़ा, दिस वॉज अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज अ गेट 2 मार्क क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. We will solve question number 3 now. जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ तभी तक आप एक बार ट्राई कर सकते हो. Just pause the video and try, then you can resume again. So this is a get 1 mark question. The question number 3 is get 1 mark question. Consider the function f of x is equal to sin x. They have given one interval x belonging to pi/4 to 7π/4. You have to just find the number of locations, just the number of locations of the local minima of this function. माने कि इस इंटरवल में x belonging to pi/4 to 7π/4, pi/4 to 7π/4, how many मिनिमा पॉइंट्स आर देयर, हाउ मेनी मिनिमा पॉइंट्स आर देयर. तो देखो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ग्राफिकली कर सकते हो या तो आप मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करके कर सकते हो. तो एक काम करो, पहले मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करके देख लो. हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं ना, फिर हम लोग ग्राफिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो चलो अप्लाई करो. सबसे पहले निकालो f'(x). लुक, they are only asking about the interval given. Okay, they are not asking about anywhere, they are just asking about that particular interval. Okay, so f'(x) is equal to d by dx of sin x. d by dx of sin x. क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन? cos x. To find stationary points, put f'(x) is equal to 0. So cos x is equal to 0 will give you x is equal to क्या होता है 2n plus 1 into pi/2 where n belongs to integers. Okay, अब देखो you have some values of x, 2n plus 1 into pi/2, and you have a interval of x that belongs to pi/4 to 7π/4. मैच करके देखो कि इन वैल्यूज में से कौन से वैल्यूज आपके उस इंटरवल में आ रहे हैं. ठीक है, उससे भी पहले मैच करके देख लो कि कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स आपके पास एक्चुअली हैं उस इंटरवल में. ठीक है, तो ये x के वैल्यूज कौन कौन से हैं. x में भी अगर आप पुट करो n इज इक्वल टू 0 तो यू विल गेट pi/2 एंड you will get a 3π/2. अच्छा, ये pi/4 से 7π/4 मतलब कितना हो गया मेरा 45 डिग्रीज टू 7 इंटू 45 कितना होता है 315 आई थिंक. ठीक है, 45 डिग्री से 315 डिग्री, और ये है आपका दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज योर 18 × 54 270 डिग्री. ठीक है, माने कि दो स्टेशनरी पॉइंट्स आपके उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे. किसमें 45 टू 315 डिग्री में आपके दो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम्स एग्जिस्ट करेंगे. अब आपको चेक ये करना है कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है. ठीक है, तो चलो मैक्सिमा मिनिमा किस पे है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे. तो फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव f'(x). f'(x) इज इक्वल टू
cos x को डिफरेंशिएट करोगे एक बार क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स. नाउ फाइंड f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. सो माइनस साइन पाई बाई 2 विल गिव यू माइनस 1. माइनस 1 माने नेगेटिव, नेगेटिव implies a point of maximum. Greater than 0 implies point of maximum. But हमें क्या चाहिए, they are asking for the local minima. So this point does not exist for our answer options. Okay. Next देखो दूसरे पॉइंट पे निकालो, 3 पाई बाई 2 पे निकालो. f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2. सो माइनस साइन 3 पाई बाई 2. इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस या साइन पाई बाई 2 प्लस पाई. अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. सो दिस इज अ माइनस ऑफ कॉस पाई. साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो दिस इज अ माइनस ऑफ कॉस पाई. कॉस पाई कितना होता है, -1. सो माइनस ऑफ कॉस पाई विल बी अ +1. दिस इज अ +1. A +1 is, okay, this is not greater than 0. I have written it by mistake. This is less than 0. Okay, this is less than 0. Less than 0 means point of maximum. Okay, so this is what, greater than 0 at x is equal to 3 pi by 2. Cos pi is equal to means at x is equal to 3 pi by 2. F double dash x is equal to +1, which is greater than 0. This implies that at x is equal to 3 pi by 2, your function is having a point of minima. Okay, this implies a point of minima. So which option is correct now? 1 minima at 3 pi by 2. Okay, 1 minima at 3 pi by 2 is the correct answer for this question. Okay, they are not asking for point of extremes, they are just asking for point of minima. At x is equal to pi by 2, we find that it is a point of maxima, but we are finding for point of minima. So option number B is correct only. Okay, now let us move to the concept of absolute maximum and absolute minimum.